جی ناظرین، خبر شامل کرتے ہیں۔ انچارج نمائندگان کراچی پاور پلس نیوز عارف سونی کے مطابق ایم کیو ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے کراچی پریس کلب میں تاجروں کے مسائل اور لاک ڈاؤن کی صورتحال اور کراچی میں 8 بجے کے بعد کی صورتحال اور بالخصوص کراچی کے تاجر موہن قادری کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا جائزہ لیتے ہوئے حکام بالا تک پہنچانے کا وعدہ کیا، جس سے ہمارے انچارج نمائندگان کراچی پاور پلس عارف سونی نے خصوصی انٹرویو لیا۔ آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ جی عارف سونی صاحب، کیا تفصیلات ہیں؟ اچھا، اب کاروبار کے اوقات کار میں نرمی کی جائے، 10 سے 10 بجے تک کاروبار کے اوقات مقرر کیے جائیں، صبح 10 سے رات 10 بجے تک مقرر کیے جائیں اور مکمل بنیں گے۔ یہ تو پھر بھی دکان کھولتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اور گھر جاتے ہیں اور قرضے گنتے ہیں۔ یہ تو بیچاریاں یہ جو تھوڑا بہت اپنے گھروں کی کفالت کر رہی ہیں، ان کے تو بالکل مکمل تباہ برباد مکمل کام کاج بند ہے ان کا، خواتین کا۔ یہ جو میری بہنیں بیٹیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، سلونوں پارلروں ان کا بالکل بند ہے، تو یہ کام بھی کھلنا چاہیے۔ اسکول بھی کھلنے چاہیے، اسکول بھی بند ہے، وہ کھلنے چاہیے۔ جی چلیں باری باری لے لیں۔ 7 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ریسٹورنٹ کی وجہ سے۔ ریسٹورنٹ کی وجہ سے 7 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، ریسٹورنٹ کی بندش سے۔ جی بھائی، آج وہی لہجہ آپ کے اندر بھی محسوس کیا جا رہا ہے، تو کیا وہ لہجہ وہی ملک دشمن نعرے پر جائے گا؟ اگر یہ جائے گا تو کیا وہ ملک دشمن تھے یا نہیں؟ آپ کو کیا راشد، اس سوال کے جواب سپریم کورٹ سے ڈیفینیشن لیتے ہیں اور پارلیمان سے کہ وہ طے کریں کہ کون غدار ہے اور کون محب وطن۔ پارلیمان میں نہیں باجی، بات سنیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، میرا بھائی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس نے صحیح سوال پوچھا ہے، اس کا کام ہے یہ۔ باجی کیا کر رہی ہیں آپ؟ باجی یہ نہ کریں، اس لیے آپ نہیں آئی ہیں۔ معافی مانگے، آپ معافی مانگے باجی، سوری، معافی مانگے۔ یہ ان کا حق ہے یار، یہ دیکھیں آج کل کا ماحول ہے، اس میں یہ سوال کی اہمیت ہے، لیکن وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میرا یہ لہجہ کن کو پکار رہا ہے، کن کو کہہ رہا ہے کہ بھائی ہے، میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ مجبور ہو گئے نا ہم بھی۔ میرا سوال یہ ہے، ایک تو ابھی آپ کی وزیر بھی رہے ہیں، کراچی بھی آپ کسی اور میں رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی حکومت بھی رہے، صوبائی میں بھی رہے۔ آج آپ نے بات کی کوٹا سسٹم کی، تو کیا کوٹا سسٹم کو آپ جتنا عرصہ آپ رہے ہیں حکومتوں میں، اس وقت ختم کیوں نہیں کروا سکتے؟ جو آج آپ بار بار کوٹا سسٹم کی بات کرتے ہیں، اس وقت تو آپ حکومت میں تھے، وزارتوں میں تھے، اس وقت کیا پرابلم تھی کہ ختم نہیں ہوئی؟ ختم پہلے ہونا چاہیے، لیکن اس کی آخری مدت 2013 میں ختم ہوئی، یہ ختم ہو گیا ہے، یہ غیر آئینی ہے۔ اس پر جتنا عمل درآمد ہو رہا ہے، تھوڑے وکیلوں کی فیس اگر جمع ہو جائے تو انشاءاللہ بہت جلدی اس کو ہم عدالت میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں۔ مردم شماری کو بھی اس کے نتائج کو آفیشلائز کر دیا گیا، لیکن ایک کام جہاں 12 سالوں میں ستیہ ناش کیا سندھ کا اور کراچی کا پیپلز پارٹی اور اس کے وڈیروں نے، وہاں بہرحال ایک کام یہ اچھا ہو گیا کہ آرٹیکل 157 کے کلاس 4 کے تحت انہوں نے مردم شماری کو پارلیمان اور سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے بھیج دیا ہے۔ میرے پاس وہ لیٹر آ گیا مراد علی شاہ کا، کہ انہوں نے سندھ کی اور کراچی کی مردم شماری کو نہیں مانا ہے۔ ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ مردم شماری کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ تو اور کوٹا سسٹم اب عدالت سے فیصلہ آ جائے گا، تھوڑا آپ اور میں ہم ساتھ چلتے ہیں، اس کو چیلنج کرتے ہیں، یہ ختم ہو جائے گا۔ میرے تاجر کاروباری بھائی ساتھ دیں، 1 کروڑ تو فیس ہے بھائی وکلا کی، اچھے وکیلوں کی، اب کہاں سے وہ فیس لائیں گے؟
पहले इनसे कर लें। फारूक भाई, एक तो सवाल ये है, अभी आपने बात की है कि 6 बजे हम दुकानें बंद नहीं करेंगे, धरने की आप हाँ, मैंने तो कहा है। आपने कहा है, तो धरना कब होगा? और इसी से रिलेटेड एक छोटा सा सवाल है, अभी आपने कहा कि 3,000 रुपए, हर 3,000 अरब रुपए की हर बजट में करप्शन होती है, 12 से 36,000। नहीं, 12 साल में कम से कम 3,000 अरब रुपए की करप्शन है, कम से कम। हाँ। तो इसके बारे में नैब क्यों खामोश है कि आप नैब को अप्रोच करेंगे? नहीं, मैंने तो कहा नैब हो या कोई, मैं तो कह रहा हूँ नैब के बस की तो बात ही नहीं है। अब तो नैब से भी ऊपर कोई ऐसा एहतसाब कमीशन बनाना होगा, कोई ऐसा एहतसाब का इदारा, मैं तो कह रहा हूँ उसका नाम भी ना दे एहतसाब, आप उसको एक कमीशन दे जो 12 साल की इनकी कारकर्दगी के बारे में वो बता दें कि इन्होंने 12 सालों में क्या किया, बस। और वो जो धरने वाली बात है, ये भी जो धरना आपने कहा है कि धरना देंगे हम ताजिरों के साथ, देखें अब वो मैं ताजिरों से मशवरा करूंगा, ये तो मैंने अपनी तरफ से पेशकश कर दी है कि मैं और मेरे दोस्त साथ हैं। अब अगर ये तैयार हैं तो हम मंडे या ट्यूसडे, कल या परसों से 6 बजे के बाद। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कल कराची की कुछ मरकज़ी तंजीमों के ताजिर इकट्ठे होंगे और अब बात ना तो मशवरे की रही है ना किसी तजवीज़ की रही है, इसलिए कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्हें हम हुकूमत सिंध कहते हैं, उनकी आंखें भी नहीं हैं, उनके कान भी नहीं हैं, उनकी खोपड़ी में दिमाग भी नहीं है। ये वो लोग हैं बेहिस पत्थरों की तरह। हम कितना चिल्ला रहे हैं, आप लोग हमें लिख भी रहे हैं, आप हमें मीडिया पर भी चला रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने किस से मदद नहीं मांगी। जिस तरह ये पुलिस, ये अभी डॉक्टर साहब ने पूरा नक्शा खींचा, उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन हम इतना समझते हैं कि हम सिर्फ दुकानें खोलने और बंद करने के गुनाहगार हैं। ख़रीदार आप खुद समझते हैं कि इस गर्मी में ख़रीदारी के लिए ख़वातीन या आप लोग कितने बजे निकलते हैं? 3 या 4 बजे अगर आप इस गर्मी में घर से निकलें कि कदरे कम तपिश हो तो यकीनन 6 बजे तक ख़रीदारी मुकम्मल नहीं हो सकती। तो आप सोच सकते हैं, फिर एक और देखें बड़ा बवाल है कि 5 बजे दफातर बंद होते हैं, 6 बजे कारोबार बंद होता है, उसके बाद एक जंगल ट्रैफिक का, उसमें एम्बुलेंसेस फंसी हुई हैं, उसमें कोई बर वक्त कहीं पहुंच नहीं सकता। एक अजीब सूरत हाल है। 6 बजे मार्केटें बंद करके भी दुकानदार मार्केटों में इसलिए मौजूद रहते हैं कि ट्रैफिक का रश कम हो तो घर जाएं। तो ये 8 बजे जो आप कर्फ्यू लगा रहे थे, 8 बजे जो आप सख्ती कर रहे थे, आप देखें, आप इनके ऐलानात से कबल के 8 बजे का शहर देख लें और आज रात को देख लीजिएगा, सूरत हाल अब ज़्यादा गंभीर हो चुकी। तो आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत थी कोरोना से बचत के लिए, तो वो तो आपने खुद ख़त्म कर दी। इसलिए मैं इंतहाई दुख के साथ ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम कोरोना के होते हुए एहतजाज की बात करते हैं, धरने की हड़तालों की बात करते हैं, तो लोगों को बुरा लगता है, आप लोग भी क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल में देख रहा हूँ, कराची में 40 लाख ऐसे लोग हैं जो रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना अपने बच्चों को खिलाते हैं, आज वो बैठे हुए हैं। आपने ईद सीज़न तबाह कर दिया, ईद के बाद शादी सीज़न आया, आपने वो भी तबाह कर दिया, शादी हॉल बंद कर दिए, आपने होटल बंद कर दिए, आपने कारोबार महदूद कर दिया। अब इसके अलावा कि हम या तो अल्लाह को पुकारें या एहतजाज करें, हमारे पास कुछ चारा कार नहीं है। मैं कराची के स्टेक होल्डर्स को, कराची को ऑन करने वाली वो सारी ताकतें, उसे आवाज़ देता हूँ, उसे पुकारता हूँ। अगर आप लोग वाकई कराची के को दिल से चाहते हैं तो हमारे साथ खड़े हों। अगर आज हमारे साथ कराची के हक़ के लिए, कराची के मुक़दमे के लिए कोई खड़ा नहीं होता, तो कराची के लोग, कि कराची की तारीख़ उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। फिर उनका ये दावा झूठा था कि वो कराची को ऑन करते हैं। सिर्फ घर में बैठ कर बात नहीं होगी, अब फैसला सड़कों पे होगा और अगले हफ्ते इंशाअल्लाह हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में हाँ। अच्छा, ये मोइन साहब की एक गुजारिश है, ये 70 लाख का सालाना टैक्स देते हैं। इनकी फैक्ट्री को एक हादसे की वजह से बंद किया गया। मेरे ख्याल में अगर हमें टाटा, बिरला
वो इंटरव्यू जो हमने ले रहे थे इनसे कि इस बारे में कि जो बहादुराबाद के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है कि लोग 8 बजे के बाद जो है बड़े परेशान हैं, और हमारे एक आमिर साहब है उन्होंने शिकायत की थी कि लोगों को नमाज़ पढ़ने भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फारूक भाई क्या करेंगे इसके लिए? लोग नमाज़ पढ़ने के लिए भी लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। देखें, जब लोग नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो मोहल्ले के कुत्ते जो हैं वो उनको तंग करते हैं, और रात को 8 बजे के बाद जब वो इशा की नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उसमें जो हमारे इंतज़ामिया का और हमारे पुलिस के एहलकारों का अमल है वो माजरत के साथ भेड़ियों जैसा है। तो सुबह भी उनके लिए मुश्किल है और ईशा के बाद भी, ईशा के वक्त भी मुश्किल है। ये 3.5 करोड़ की आबादी वाले शहर, गुंजान शहर को, उसमें आप कोरोना से इस तरह लड़ें कि लोगों को, नमाजियों को नमाज़ पढ़ने ना जाने दें, और आप उनको घर से ना निकलने दें। मेरे ख़्याल में ये कोई कर्फ्यू दरकार नहीं है, SOPs पर अमल दरामद दरकार है। कारोबार बंद करना मसले का हल नहीं है। कारोबार खुला हो, मईशत भी चलती रहे, रोज़गार चलता रहे, और हम कोरोना से बचते रहे। ये जिंदा कौमों की तरह हमें इस चैलेंज को कबूल कर रहे हैं। इन्होंने मीडिया सेल पे CM का जो है उन्होंने शिकायत दर्ज की, लेकिन उधर कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखें ना, सुबह नमाज के वक्त, फजर की नमाज के वक्त कुत्ते हैं, रात को भेड़िए जैसा अमल है हमारी इंतज़ामिया का बदकिस्मती से, और फिर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग बैठे हुए हैं उनको जैसे ही हम देखेंगे तो हम बताएंगे कि वो क्या हैं। तो अभी हमें वो नज़र नहीं आ रहे, तो गलत है ना ये। मतलब उनके मफादात, सब मफादात की प्रोटेक्शन है। वो कैसे पुलिस को और इंतज़ामिया को कहेंगे ऐसा ना करें? वो तो कमाओ पोते हैं उनके, असल खरबों रुपया तो किसी और के ख़जाने में जा रहा है। ये तो बेचारे चंद करोड़ कमा के खुश हो जाते हैं, लेकिन ये अपनी आखबत उनके लिए ख़राब कर रहे हैं। मैं पुलिस वालों से, इंतज़ामिया से, DC से, असिस्टेंट कमिश्नर से कहूँगा कि भाई अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपनी रिश्वतों का रेट कम कर लें, और रिश्वत एक जगह ले लें अगर लेनी है तो हमारे शायद ताजिर और कारोबारी आपको एक जगह रिश्वत दे दे, लेकिन हर जगह रिश्वत, हर एक की रिश्वत, हर एक का मुंह खुल गया है, जो चाहे रिश्वत मांग ले, कोई रोक टोक नहीं है। एनार्की है, ये जंगल का कानून है, ये कोई जदीद और महज़्ज़ब माशरा नहीं है। और अगर ये जंगल का कानून है तो आज आपके हाथ में ताकत है तो लोग अपने हाथ में ताकत ले लेंगे। अगर जंगल का कानून है तो हर आदमी फिर जंगल का कानून से जवाब देगा। खुदारा होश के नाखून लें, अपने नाइंसाफ़ियों और तासुबाना अमल को बंद करें, और कराची को भी और कराची वालों को भी इंसान का बच्चा समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मसला था? किससे बात? एक मिनट पहले मोइन भाई IG से बात होगी, मैं कर लूँगा। IG से बात होगी कि ये दोबारा एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए। बॉयलर नहीं था, बॉयलर नहीं था, कुछ खत्म हो गई बात, और एक टीम बनाई जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन मैं करवाऊंगा। बस मुझे थोड़ा सा इनका प्रोफाइल भेज दीजिएगा, बस इतना भेज दें, इनका नंबर, ईमेल, ठीक है, और FIR की कॉपी मैं भिजवा दूँ बस, या उसका नंबर बस। जी FIR की किस दिन ये सानिया हुआ था, कितने लोग शहीद हुए थे, क्या हुआ, तो मैं इंशाल्लाह ये देखें इनकी क्या। देखिए, पहली बात तो ये कत्ल आमद तो हो नहीं सकता कि जानबूझ के, अल्लाह ना करे, मारने के लिए इनके सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे, ये जानबूझ के हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता। भाई मैंने अपना जो कोल्ड स्टोर था वो कादियानी जो है शीज़ान वाले, उनको किराए पे दिया हुआ था। मुझे थ्रेट्स आ रही थी कि भाई तुम कादियानी हैं, तुम कादियानी से कारोबार करता है, तुम ये करता है। ये सारा उसका शाखसाना है, और मेरी जितनी मशीनरी वहाँ लगी हुई है, आप मेरी फैक्ट्री आएँ, मैं आपको विज़िट कराता हूँ, मेरी एक एक मशीनरी इंटैक्ट है, अपनी जगह खड़ी हुई है। और ये दफ्तर के करीब धमाका हुआ है और दफ्तर उड़ गया, उससे सारी दीवारें उड़ गई। देखिए, मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि जो आपने इसका बैकग्राउंड बताया, हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपको इंतकाम का निशाना बनाएगा, किसी ने जानबूझ के आपको फंसाया। मैं समझ गया इस बात। हम इतना ही कहें कि आपको जानबूझ के फंसाया, आपके ख़िलाफ़ साजिश थी और किसी ने आपसे बदला लिया है, ठीक है ना। अच्छा, आपके कारोबार की जो शराकत थी उसकी वजह से, ठीक है ना। लेकिन हम उसमें बात यह है कि क्या तहकीकात क्या कह रही हैं, क्या बॉयलर था? कोई बॉयलर नहीं था, ठीक है ना। धमाका दफ्तर के बाहर हुआ, उससे मुतासर हुआ, फैक्ट्री का सारा सामान महफूज है। दोबारा IG साहब तहकीकात करें, दूध का दूध, पानी का पानी, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम उसमें आपकी इम्पार्शियल इंक्वायरी की जाए। हाँ बिल्कुल, हम आपके इस मुतालबे के हक़ में, और हम IG तक ये मुतालबा पहुँचाएँगे और आपको इंसाफ दिलाएंगे इंशाल्लाह। से अपना जो शिकायत थी, जो मसला था, तो इंशाल्लाह आपको क्या लगता है कि वो मसला हकाम बाला तक पहुंचेगा? मैं बड़ा फारूक भाई का बड़ा मशकूर हूँ। फारूक भाई ने मेरी बात बड़ी तसल्ली से सुनी, मुझे हर तना मदद करने की, हर फोरम पे मेरी बात उठाने के लिए मुझसे उन्हें वादा किया, और मेरा यकीन है कि फारूक भाई इंशाअल्लाह ताला ये अमल बिल्कुल करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। और हमारे राजा अब्दुल गफ्फार के बारे में आप क्या कहोगे, जो पावर प्लस
जो इन्होंने चैनल कायम किया। आपका लब व लहजा, आपका जो तरीक़ा कार है मुझे बेइंतहा पसंद आया। आप बड़े पोलाइट हैं, बड़े पोलाइट सवाल करते हैं आप, और आपके सवालों में सख्ती नहीं होती, ना कोई तंज़ होता है। ये एक बड़ी खूबसूरत बात की मुझे पसंद आई आप। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए कराची प्रेस क्लब से हम यहाँ पर मौजूद थे, और आज हमारे साथ मोइन भाई भी मौजूद थे, जो इनका एक मसला दरपेश था, वो फारूक भाई ने इंशाल्लाह अहकाम बाला तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आप देखते रहिए आरिफ सोनी पावर प्लस न्यूज़ प्रेस क्लब कराची।